जी हाँ। नमस्कार रिचर्ड जी, कैसे हैं आप? Yes, sir. Long time no see. या द बिग स्मॉल टॉक। अरे हाँ यार. या सो एक ही टॉक किया था हमने, दूसरा कर नहीं पाए। तो क्या हुआ, दुनिया भर में एक्सपेक्टेशन होती है ना हर चीज़ को फॉलो करने की, तरतीब से लगाने की ख्वाहिश जो होती है दुनिया की. तो आई गेस इट्स ऑलमोस्ट 11 weeks. So we're reaching 11 weeks, a lot of changes, Yes. a lot of improvements, and everything is there. A lot of behind the scenes action. Yeah, a lot of new things are happening that we'll announce soon. Yep. Exciting things, not just monologues. बहुत So, कुछ आ रहा है. I mean, yeah, बहाना नहीं है, but we've been working a lot behind behind what you see on camera, and we'll be announcing a lot of things very soon, and बहुत मजा आने वाला है. हाँ जी. तो एक बात आपके शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस प्रोसेस दैट I had it in my mind and then shared it with everyone. Because of one small step, one monologue every Monday, the whole routine changed. Now I am in writing clubs, and I am writing, I am thinking about a lot of different things. so G is on fire. सो एक्शन में आ गया हूँ मैं, और मेरे आसपास के बहुत सारे लोग भी एक्शन में आ गए हैं, एंड आई एम रियली हैविंग फन विद दैट. एंड आई थिंक द लॉकडाउन इज नॉट बॉगिंग मी डाउन. सो या सो मतलब ये ऑफ कोर्स लॉकडाउन तो क्या है ना यार कि बहुत सारे हमें हम सबके पास ऐसा लग रहा था, बहुत सारे काम जो पहले बोल रहे थे ना कि लॉकडाउन में हो सकते हैं, बाल ठीक लग रहे हैं, सॉरी. तो ये कि लॉकडाउन में बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो हमने उसको यार अप्लाई किया, कोशिश करके देखी कि बहुत सारे काम हो सकते हैं. एंड हमारे अंदर का हल्क ऑलवेज एंग्री नहीं रहा, एंड वी एक्चुअली ended up accomplishing a lot of stuff, and which includes monologues, which includes shows on Zoom, and artist ensembles, in which we will very soon be announcing a lot of very, very interesting stuff. We're collaborating with a lot of artists, and we're trying to make an arrangement where we still keep the garima of the art form of their respective crafts, and make sure that they get paid. And yep, so we are a lot of people are doing it. We are also a part of that, and I'm very grateful to be able to see other people who are executing it flawlessly. चाहे जो भी वजह रही हो, this has been a very challenging. I don't want to use the word anymore because we've spoken too much about it, but I think this has been a very, very very big eye-opening period for all of us. We've learned to live with ourselves in a very, very good way also, and learn to manage our anxieties, and learn to manage our disciplines, our ethics, the way we would want to see ourselves as artists, as human beings. And I think बहुत अच्छा भी हुआ है. I've seen a lot of people become a lot better. I mean, I know I am a lot, I like the process, man. I'm happy to. I'm in a happy space, and I'm very happy. I was talking to my sister today, and we were just talking about how now it is all about what you really need. It is not about accumulating a lot. Like हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे और भाग रहे थे, और अभी है कि कुछ छोटी चीज़ें कर रहे हैं और उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार, और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें घर बैठे बैठे हो पा रही हैं. मतलब द काइंड ऑफ, मतलब मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली, एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी, वेरी फॉर्चुनेट टू बी लिविंग विद समबडी लाइक Mr. Anand, and my younger brother, and other people who have been here with us at different points in time during the lockdown. I'm very, very grateful to each and every one of you.
You guys have made this super easy, super simple, and मतलब मैंने इतनी चीज़ें मतलब ऐसे नॉर्मल दुनिया में भी भाग दौड़ करके भी नहीं कर, मैं आई वेरी ऑनेस्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज हर एक के पास एक ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा द माइंड्स वर ऑक्यूपाइड all the time. Everybody's minds were occupied, and then everybody had jumped into 10 different things. Now everybody is focusing on that one basic thing जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है in life to survive. And somehow now that I've come to realize, a lot of creative people, they have similar priorities. तो basically जब कूड़ा छटा ना इधर उधर से, when you clean your rugs, you know, तो बहुत सारी फालतू चीज़ें चढ़ गई और कापूस रह गया. बिल्कुल. एंड इट हैज़ बिन मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ रही है. we've got a lot of work done and we chilled a lot. और रिलैक्स भी. पहले कि ये कैफे में जाना है, यहाँ पे बैठना है, वहाँ अभी घर पे ही बैठे हुए हैं एंड यहीं पे अपना आशिया बना दिया है. इसी बात पे मैं एक गाना नहीं गाना चाहूँगा. नहीं, तो वही है कि मतलब बहुत चिल किया है. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दारोमदार अपने सर पे ले लिया है तो अब थोड़ा स्ट्रेस में जिएंगे. बहुत बहुत चिल में लाइफ बीती है. ऑब्वियसली आई एम इन अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज एंड आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दैट टू. चाहे मैंने ही खुद ही क्रिएट किया हो ये प्रिविलेज, यू नो, बट स्टिल जो है वो है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. एंड आई थिंक वी शुड ऑल एक्नॉलेज द गुड थिंग्स दैट वी हैव इन लाइफ. बहुत मज़े में है अभी. देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. मतलब a lot of people are facing a lot of hardship and हमें नहीं करनी पड़ती. so I'm very extremely grateful. मतलब ऐसा नहीं है कि completely zero hardship है. hardships तो जो दूसरे का है वो अपना रहा भी है. it's about how you're taking it actually. Absolutely. मेरे को नहीं लगता है मैं hardship. So basically the way I want to live my life ideally is that if I don't use the word problem very easily in my life when I'm referring to anything going outside of the plan. तो मैं तो challenges use, you know that, मैं challenge word use करता हूँ. Absolutely. और challenge या तो आप overcome कर लेते हो या फिर नहीं कर पाते हो तो वो आपको कुछ सिखा ही जाता है. So that's how I look at it. And obviously challenge आए हैं, बहुत सारे challenge आए हैं, but वही है कि I like to count my blessings. It gives me a lot of happiness and it just keeps a happy space. Negativity ko, I'm very clear, I don't want any negativity in my life. So if negativity happens, I have become I was an idiot before, but now I like to talk about things. I like to take it out. I'm sure a lot of my friends from my past and relationships and acquaintances, they would agree to the fact कि यार मैं नहीं बात करता था. मतलब नहीं सिखाया ना हमें बचपन में किसी ने कि बात करो एंड कम्युनिकेट करो और ये करो. बट अब जाके धीरे धीरे इंसान मतलब गलतियों की वो होती है, पुतला होता है, तो गलतियों से ही सीखता है इंसान अपनी. और मैं बात कर लेता हूँ अब, एंड आई फाउंड दैट टू बी अ मच बेटर सोल्यूशन. इवन इफ द अदर पर्सन इज नॉट दैट ओपन टू अ कॉन्वर्सेशन, आई फील any relationship can be worked on if you just have, like, start somewhere. Start on what you like about that person, if not what you dislike about that person. धीरे धीरे if you are building a relationship, then दूसरा बंदा सुनेगा. If there have been times जब मैं इन लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहता था तो I would do a video call. I regularly speak at home. अब तो वाईफाई भी लगा हुआ है हमारे यहाँ, तो इतना ना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. एंड so data is not a problem. So a lot of things like that helps me keep sane. Yeah, I would like to say something about that कि communication has always been the key. and अब जैसे आपने बोला कि communication ही हमें नहीं बताया गया कि we should communicate, we should keep things under the rug or something. आज जब I was talking to a friend today और मैं उनसे यही कह रहा था कि the moment someone oversteps, even if it's a little तिचकी सा भी overstepping है, you should stop and tell the other person कि देखो, this is not okay, this is not fine, which we do to each other. Like if there is something that I would not like that Richard has done, even if it's slight, I would not keep it in my head. Absolutely not. I'll tell him कि ये ऐसा मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, और ये भी वो सेम चीज़ करता है.
and I do practice that with everyone in my life. Overstepping happens over time, कि 4 बार 5 बार 6 बार और आप चुप रहते हो, एक दिन आप फटते हो. It's better पहला ही हल्का सा लग गया पैर पे तो बोल दो ना. Also that helps with setting the expectations and setting your boundaries with the other person or whoever it is that you are with. And of course that's a fantastic thing that you said, and it's a great thing. Professionally, हम personally, लोग आपस everything. में इतने हार्ट वाली मोहब्बत से ऐसे ही नहीं रह पाते ब्रो. बहुत सारा काम होता है इस पे करने के लिए. हम अपना स्ट्रगल बताते नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा लाइफ में स्ट्रगल नहीं है. हल्क इज एंग्री, गेट्स एंग्री, बट वी पुश हिम डाउन. लाइक ब्रो तू दोस्त है मेरा. हाँ तो लेकिन यस, सो बात किस बात पे हो रही थी? बात तो ये बात हो रही थी कि हमने जो ये प्रोसेस, ये वीडियो इसलिए मैं बनाना चाह रहा था बिकॉज देयर इज़ दिस वन थॉट जो कि रीअकरिंग है मेरे लिए कि आई वांटेड टू डू एक्टिंग कोर्स, अ 3-year एक्टिंग कोर्स जैसे NSD या फिर FTI. हाँ, लेकिन मैं कभी किया नहीं. मतलब NSD का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम देने नहीं गया. वो अब यू नेवर नो मतलब क्या चलता दिमाग में. और मुझे एक मेरे सीनियर टीचर ने मुझे ऑफ़र भी किया था एक कॉलेज का, नया कॉलेज खुला था, उसमें स्कॉलरशिप था, 100% स्कॉलरशिप था. पता नहीं कभी होता क्या है 100% स्कॉलरशिप? मतलब आप पैसे नहीं देते पढ़ने के लिए? हाँ होता है, एक आध लोग बोल मतलब देते ही नहीं हो पैसे बिल्कुल. आई डोंट नो यार, मैंने तो किया नहीं ना. मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं. मतलब होता होगा, जो भी होता होगा, या तो अपनी जिंदगी की पढ़ाई सड़कों पे की है भाई. हाँ तो एक टाइम होता है, फिर आप नहीं करना चाहते हो, फिर आपको लगता है कि आप ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर रहे हो और कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपने आप को एंगेज रख रहे हो. और मेरे साथ ये हुआ था, मुझे लगा कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं राइटिंग कर रहा था, टीवी के लिए कर रहा था. और फिर उसके बाद आई फेल्ट आई वाज इन अ बेटर प्लेस. अभी क्या कोर्स वोर्स करूँगा मतलब कि पर रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली वो एक प्रोसेस है कि आप 3 साल बस एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं यार, जो भी कर रहे हैं उस क्राफ्ट से जुड़े हुए 100%. हम क्या करते हैं, हम जैसे कि मैं अगर बॉम्बे आया तो मैंने ग्रेजुएशन किया, साथ में थिएटर कर रहा था, उसके बाद जॉब कर रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ और कर रहा था, और साथ में जब वक्त मिलता था तो एक्टिंग करता था. तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली लगता है. आज भी मुझे कोई नया रोल देते हो तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ जाता है कि उप्स अब इसको कैसे करना है ना, कि अच्छा ओके. सो आई डोंट हैव अ गो टू प्रोसेस. इवन इफ आई हैव क्रिएटेड माई ओन प्रोसेस, तो मुझे हमेशा वहाँ पढ़ाई नहीं की है मतलब. हाँ, कि एक पुख्ता सेट ऑफ रूल्स नहीं है. तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर कोई एक सेशन करेंगे 100 मोनोलॉग्स 100 वीक्स में, कि पीपल फ्रॉम NSD और FTII में जो प्रॉपर 3 साल 5 साल 6 साल, what can you tell us about the process that you are going through, जो कि एक अनट्रेंड एक्टर है, जो कि बाद में प्रोसेस करके ट्रेन तो हो ही जाता है. कि नसीर सर ने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि आई डोंट थिंक, कुछ तो बोला था कि इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट कि आप कोर्स करो, बिकॉज एक्टिंग इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था. तो अगर किसी को चाहिए तो मैं ढूंढ के वो इंटरव्यू शेयर कर दूंगा, बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू. तो सही बात है, इट इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. द क्लोजर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोर यू कैन अंडरस्टैंड समवन एल्स, जो कि कैरेक्टर आप कर रहे हो. लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे कि कोई वॉइस एक्सरसाइज होता है या जो बाकी चीज़ें होती हैं, तैयारी वो क्या होता है, वो क्या तैयारी होती है जो वो कॉलेज में सिखाई जाती हैं, तो और क्या हम कर सकते हैं, ये मैं एक सेशन ज़रूर करूँगा. तुम उस बारे में क्या कहना चाहते हो? यार मैं तो देखो, फर्स्ट ऑफ मैं सो माय एल्डर ब्रदर यूज्ड टू, उसने बचपन से वो किया है थिएटर इन एजुकेशन. Then a lot of my senior artist friends in the voiceover business, उन लोगों ने भी NSD से किया है. मैं बचपन से एक चीज, मैं रहता था थोड़ा दूर NSD से. तो मैं दूर मतलब बदरपुर बॉर्डर साउथ दिल्ली रहता था. NSD थोड़ा दूर था. अच्छा. हमेशा बातें सुनता था मैं NSD के. NSD वो बेबी मतलब ये एक जगह है, मतलब
then I realized I grew up and I started going there. थोड़े बहुत पैसे होते थे तो we started going and watching shows. I remember the first show that I watched was बेगम का तकिया. ठीक है, उसके बाद मैंने देखा जाति न पूछो साधु की, and so on and so forth. I have a lot of respect for National School of Drama because I know it very closely. I have family members who've been there, you know, choreography में या फिर otherwise. And I have a lot of very very good friends who passed out of National School of Drama. बहुत ही मज़ेदार इंस्टीट्यूट है and they are very clear in their point of thought, at least जो मैं समझ आया हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ वहाँ पे. वो लोग थिएटर को डेडिकेटेड है. They train you for theatre and everything related to theatre. उसके बाद obviously because there are fine actors coming out of that place and then they adapt to other mediums as well. So I have a lot of respect for NSD. I don't know much about FTII. The only thing I know about FTII है कि यार FTII में ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, उनकी इंटेलिजेंस लेवल इन as a student of cinema, they are so well educated people from FTI, and I'm not even kidding. Each and everybody that I've seen from FTI, they are brilliant. They've studied foreign films, they've studied regional films, they've studied films in general. उसका मतलब सत्तू का घोल बना के पी चुके हैं वे. And they can talk, they can really talk about it. And everybody that I've seen come out from FTI, कोई मुझे बोलता है ना कि FTI से हैं, मैं थोड़ा सा तो यार देखो, मैं ना मतलब मेरे लंबे बाल दाढ़ी की मजा, मैं थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाता हूँ. मैंने कहा हाँ भाई FTI है, तो थोड़ा सीधा होकर बैठ जाता हूँ, लाइक हाँ जी सर बोलिए. मतलब मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ. मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट ये होता है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट टू. बट अलग अलग तरह की रिस्पेक्ट है. मतलब उनको तो मैंने देखा है NSD में, और FTI के लोगों को देखा है. सो आई हैव सीन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड इट्स ब्रिलियंट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो coming to the point where ये क्या कहते हैं, actors coming out of either a school or not from a school, मुझे ना इस बात का, I mean I'm not sure, I have to Google it up, but Leonardo DiCaprio कहाँ पढ़ा है, because I've seen him acting since childhood. नहीं, वो पढ़ा नहीं है, वो हमेशा और बचपन से ही एक्टिंग कर रहा है. Exactly. So वो एक्टिंग स्कूल नहीं गया. उसने obviously he would have taken workshops. De Niro के साथ आप फिल्म करने जा रहे हो तो आप वर्कशॉप तो लोगे ही. वो सब करना पड़ा होगा. तो उसकी भी बड़ी इनफॉर्मल एजुकेशन रही, जैसे हम लोगों की रही है. हम लोग मतलब there's no, हाँ मतलब जिन लोगों के जिन्होंने नहीं किया कोई कोर्स, there's no parallel, there's no comparison because it's a different career, different life altogether. बट ब्रैड पिट ने बोला था ना अपने इंटरव्यू में, जो हम बात भी कर रहे थे, कि उसने बोला था कि यार उसने बोलता है एक्टिंग मेथड्स के ऊपर आपका क्या कहना है. तो ब्रैड पिट सेड कि भाई ट्राई सब कुछ करो, सीखो हर जगह से, एंड देन डिस्कार्ड व्हाट यू हैव टू एंड टेक द गुड थिंग्स आउट ऑफ इट. आई हैव स्टडीड एट द सेम स्कूल वेयर ब्रैड पिट हैज स्टडीड. आई हैव स्टडीड दैट टेक्निक ऑल्सो, Ivana Chabak's technique. I started मतलब everything that I know about theatre, about acting, about performing, sorry, about the craft in general, जो भी मैं जानता हूँ. तो मेरे टीचर लोग हैं राखी मानव, राखी चौहान मेहता एंड मानव मेहरा. दे टीच एक्टिंग इन दिल्ली, एंड उन्होंने मुझे इस दुनिया को दिखाया. आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम, इंडेटेड टू देम. ठीक है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है. और क्योंकि मैं ना पूरी जिंदगी भटका था, मैं सिंगर था, मैं स्कूल में परफॉर्म किया, मैं इधर उधर परफॉर्म किया, ठीक है ना, छोटा मोटा जब नौकरी करता था तब भी परफॉर्म करता था. बट व्हेन आई मेट देम इज व्हेन आई गॉट टू नो कि ये चीज़ कितनी सीरियसली लेते हैं लोग. दे हैड दिस ह्यूज बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग विद NSD एंड श्री राम सेंटर, एंड मुझे तो पता भी नहीं उन्होंने कहाँ काम किया है. ब्रिलियंट एट एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग. ठीक है, हर कोई मतलब कमाल है वो लोग, है ना, उनको छूना भी मुश्किल है. उनका था, उन्होंने बेगम का तकिया में भी काम किया हुआ था, NSD की रेपर्टरी में भी काम किया हुआ था बहुत पहले उन्होंने. तो उन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई, और जिस तरह से दिखाई वो इतनी ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस की कि मैं आज तक, और मुझे लगता है मरते दम तक मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ जाना चाहता हूँ. मतलब वो फैंटेसी क्यों है, बिकॉज उन्होंने मेरे को दिखा पाए, वो आग इस तरह से जलाई है. और फिर उसके बाद मैंने Ivana Chabak के पास पढ़ा.
I studied in LA at the same school where apparently Brad Pitt has studied, Charlize Theron, Jim Carrey, all these guys have studied. घूम फिर के बातें तो वही है ना, ये इस बात है ना. हमने भी वॉइस एक्सरसाइज की थी because they had studied at NSD and not studied, मतलब उन्होंने वहाँ पे रेपर्टरी में काम किया है. They were also not students of NSD. They've worked in their productions. So वॉइस एक्सरसाइज की है मैंने. बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फॉर एनीबडी, मुझे पता नहीं था यार, और उस समय ना इतनी अक्ल भी नहीं थी क्योंकि मेरे घर के कल्चर में नहीं था कोई कि यार एक्टर बनना है, तो ये नॉलेज नहीं होती है हम लोगों को ज्यादातर. तो आप कुछ भी कीजिए, अगर आपको वो चीज़ इतनी पसंद है ना, वो अपने आप सस्टेन कर जाएगी. कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको. अगर आप गलती से भी एज एन एक्टर you've come into this as a singer, as a painter, आपको पता लग जाएगा वो फायर कितनी है, वो कुछ टाइम में आपके अंदर या तो रहेगी या नहीं रहेगी. You will automatically find out, right? तो हाँ, जो NSD में किया वो हमारे माता गुरुजी ने भी किया था, वो हमें सिखाया, एटलीस्ट कोशिश तो किया, मैं जूते मार के सिखाने की, because we deserved it, but that's a different conversation है. तो और प्यार भी बहुत दिखाया. उसके बाद फिर आई वर्क विद डिफरेंट पीपल. तो वो ये जो ब्रैड पिट ने बोला, मैं उससे थोड़ा सा वो रखता हूँ, वो यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाती है अंग्रेजी, क्या बोलते हैं उसको. आई फील दैट इट इज क्लोजर टू माई एक्सपीरियंस बिकॉज देन आई वर्क विद मिस्टर आमिर रजा हुसैन हु इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड you know, the only director to have like these brilliant magnum opuses, period dramas and dramas in general, English theatre. And you know, so I worked with Amir sir and I worked with Yashwant sir and Saloni ji, Sal, and I love these guys because these guys are brilliant and they love what they do. And I'm still inspired by small moments that happen between them, let alone the entire picture of the craft. You know? So, and I worked with you. You've directed me in a play. And, you know, so, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको सुविधा नहीं है और आप में समझ नहीं है, ये एक्सपोजर उस तरह का नहीं है, there are still opportunities if you're looking for it. And what you seek, you will get. मिल जाता है. Now when you are talking about this experience, and this is just the technical bit, हाँ. This is just the technical bit. For मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक्टर के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. टेक्निकली साउंड होना चाहिए. फिर एक अच्छा एक्टर ना यार इमोशनली इंटेलिजेंट होता है. और इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं एक वैसा एग्जाम्पल हूँ जो बहुत ही एवरेज रहा है पूरी जिंदगी. ठीक है. हाँ, एवरी विच वे. आई नेवर हैड द बेस्ट फिजिक, आई नेवर हैड, मतलब इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव ना, बट वो छाप तो छोड़ जाता है ना. अब तो मैं इसका मुझसे सुंदर कोई लौंडा ही नहीं लग रहा है. सो बट आई हैव बीन एवरेज एंड आई मीन सीखा उसी हिसाब से है. ठीक है ना. बट आई हैव सीन थिंग्स. इमोशनल इंटेलिजेंस चीजों को अनुभव करके आती है. एंड दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स विच यू सी इन योर लाइफ. इमोशनली इंटेलिजेंट वो आदमी होता है जो उन सिचुएशंस को समझ के ना दोबारा उसको प्रोसेस करने में आसानी होती है जिसको. एंड इमोशनली इंटेलिजेंट एक्टर्स व्हेन दे यूज दैट इंटेलिजेंस ऑफ because which happens because of experience. मतलब मैं ज़्यादा confusing नहीं करना चाहता हूँ. Emotional intelligence happens over a period of time of your life, जहाँ पे आप कुछ आप जिंदगी के अनुभव एक आपको ऐसे उस पे हर रोज हर पल एक ऐसे ऐसे स्थान पे ऐसी जगह पे लाके छोड़ देते हैं जहाँ पे आप अपने पहले के एक्सपीरियंसेस से सीख के आगे की जिंदगी जीते हैं. इमोशनली इंटेलिजेंट एक्टर अगर वो टेक्निकली भी साउंड हो जाता है ना, विच मीन्स ट्रेनिंग योर इंस्ट्रूमेंट्स, योर वॉइस, योर बॉडी, योर हाव भाव, जेस्चर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. मतलब देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो दैट इट ओनली हेल्प्स यू रिक्रिएट. स्कूल्स, फिल्म स्कूल्स, ये सब क्या सिखाते हैं? दे हेल्प यू रिक्रिएट थिंग्स.
है ना, मतलब आई नो इट्स अ लिटिल थोड़ा वेग भी है, क्या फिर क्योंकि से ना एक कोई बार एक डेफिनेशन नहीं है। मतलब अपने जिंदगी में जितने भी अनुभव होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वो आपको बोलते हैं ना अनुभवों को कैसे इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस में बदलो। हाँ ओके और ऑब्जर्वेशन ये दुनिया भर की चीज है कि दूसरे के अनुभव से भी आप सीख सकते हो, है ना। तो बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स ये होते हैं, बिकॉज देन अदरवाइज आप ये देखो, डकोटा फैनिंग बच्ची थी जब आई थी, क्या ही उसने पढ़ाई कर ली होगी, लियोनार्डो ने क्या ही पढ़ाई कर ली होगी। और वो बच्चा वाजपेयी जो साहब, वो हमने वीडियो देखा था जो मैंने शेयर किया या द रीडर, वो बच्चा चार्ल्स डिकेंस वर्सेस लियो टॉल्स्टॉय में जो comparison फर्स्ट 10 मिनट्स में वो बच्चा आता है, वो इट इज क्रेजी। because Manoj Bajpayee is hands down one of my favorite actors, to be very honest. You know, I mean, I love him, and I think he's given us some fabulous performances. Chota muh badi baat, but I think he's brilliant, and he's one of the finest that we have. And even यार मतलब Mr. Amitabh Bachchan, he never came from NSD, वो भी थिएटर जो हम क्या बोलते हैं स्क्वायर एमेच्योर थिएटर, उससे निकल के आए। मतलब कॉलेज में थिएटर करते थे? नहीं, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब व्हेन यू वर्किंग इन अ थिएटर कंपनी ना, कैलकाटा में करते थे जॉब और वो नहीं थिएटर कंपनी वगैरह होते हैं ना ब्रॉडवे और टाइप्स की, तो वो प्रोफेशनल थिएटर एंड देन यू पुटिंग अप प्रोफेशनल शोज, तो वेरी थिन लाइन। हम एमेच्योर थिएटर करते हैं जो हमने किया था, जिसमें 7 लोग आए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 लोग भी आ चुके हैं मेरे शोज पे, तो आई परफॉर्म टू 3 people 7 people ऑल ऑफ दैट। अब बड़ा मजा आता है लेकिन उन वाले शोज में, सो उसमें मतलब ओके, सो इफ यू वांट टू फील बेटर, ये वो वाले शोज होते हैं जो हमें लगता है प्रोफेशनल थिएटर है लेकिन होता हुआ एमेच्योर थिएटर है। मतलब या सो दैट एनीवे। सो जहाँ तक एक्टिंग सीखने की बात हो रही है ना, ये जो वर्ड है ना एक्टिंग सीखना, वही है यार, स्कूल्स ये करते हैं। अब स्कूल में वो आपको ना क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड टीचर्स, नॉलेज इन एवरीथिंग देयर इज टू हेल्प यू थ्रू दैट प्रोसेस फास्टर। जिंदगी की लय तो अपने हिसाब से ही चलती है। 365 दिन 365 दिनों में ही गुजरते हैं, 6 महीने में नहीं। तो बट वो सिखाते हैं यार, मतलब आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस हु टीच द क्राफ्ट, but you can achieve brilliant, mind-blowing performances where you get so deep down a human being's soul, and I'm talking about the person who is watching the actor perform. तो ये जो इतना अंदर जाके आप कुरेद सकते हो ना इंसान को, फिर वहां पे वही है कि आप कितना सेंसिटिव हो और कितने मोहब्बत से आप, कितना हासिल करके, कितनी मोहब्बत से आप क्राफ्ट के पीछे पड़े हो कि आप छोड़ोगे ही नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब जैसे ये मोनोलॉग्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो इन मोनोलॉग्स में क्या कैरेक्टराइजेशन और क्या कैरेक्टर, इसका तो पहला उद्देश्य तो मुझे पर्सनली, हाँ, फॉर मी I can't understand a character too deeply in 7 days. भाई मेरे I remember the lines and I say it in a way I think is appropriate. For all the videos that I have done, I've never assumed any character. वो मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या, हाँ भैया थोड़ा सा इधर उधर जोड़ जाड़ लिया, मतलब हाँ, there is no effort as such. The only effort is you memorize the lines. okay. And say it in a way it should be said, वो सिनारियो वगैरह क्रिएट करके। Correct. तो what I mean to say is, if getting so deep in that role और ये वो करने में मज़ा आता है when there is a real production happening or real film shoot happening. Like if you tell me कि हाँ let's shoot a short film and हम ऐसा शूट करेंगे और उसको प्रोफेशनली वो करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग मोनोलॉग्स, एक तो उसमें एक लिमिटेशन मुझे पर्सनली ये फील होती है कि आई डू इट एंड देन पीपल कॉल मी अप एंड दे सेड कि हाँ हमने वो फिल्म का जाके मोनोलॉग देखा एंड ये देखा एंड अच्छा क्या तुम। आई नो आई हैव अ कैमरा, आई पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड, आई एम सिटिंग हियर, आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई हैव नो म्यूजिक।
what are you trying, what, how can you match it with a film जिसका processing हुआ है, pre production हुआ है, ये हुआ है, मैं 7 दिन में एक monologue prepare कर रहा हूँ, it is for practice purposes or whatever purposes. So personally I don't take that pressure कि हाँ भाई वो film से match कर लेंगे, मैं जाके करूँगा तो मतलब I have learned to accept looking at that video in a way that it is a practice video. Yeah, no matter what note you hit, कितना भी brilliant perform कर लो, तुम हमेशा उस फिल्म से तो नीचे ही रहोगे क्योंकि वो फिल्म है. But from a production point of view. Performance तो ठीक है, performance is a different thing that you can reach. तो in a way अब जैसे कि वो हम कॉलेज की बात कर रहे थे और इसकी बात कर रहे थे, तुम्हारी बातों से जो मैं सुन रहा था मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि actually now I'm not missing college, not being to a film school or theatre school. Why? Because the moment I came to Bombay, I joined a theatre group. ठीक है, तो शाम में 6 घंटे तो ज़्यादा था मैं वहाँ पे एकजुट में नादिरा जी का. तो अब नादिरा जी शुरू से ही she had been working with newer actors. हाँ, तो हम लोग बेसिक जो एक्टर्स हैं उनको मौका देना, और मैं सोचता था क्यों करते हैं इन लोग इतना, तो शी इज सच बिग नेम, शी इज डन इनफ की जरूरत नहीं है उनको, तो शी कुड जस्ट कास्ट सेलिब्रिटीज एंड. और एक बार वो एक कुछ बात हो रही थी एंड शी वाज अ लिटिल, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस हियर, कि शी वाज नॉट, शी वाज लाइक, वो स्ट्रगल होता है जो नए लोगों के साथ काम करने का, एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है. एंड आई आस्क्ड हर कि व्हाई डू यू वर्क विद दीज पीपल व्हेन यू कैन वर्क विद, लाइक बाय द टाइम आई वाज अ बेटर ऑफ एक्टर, 4-5-6 साल हो चुके थे तो मैं ठीक ठाक कर रहा था. एंड दैट इज व्हाई शी वाज डिस्कसिंग दैट विद मी मे बी. एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज़ अ पैशन कि हाँ ठीक है, नए लोगों को वो बेसिक एजुकेशन देना जो चीज़ है, एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन विद एकजुट, वो आज भी चल रहा है वो प्रोसेस. आज भी नए लोग आते हैं, नए चीज़ें सीखते हैं और फिर दे मूव ऑन टू समथिंग एल्स. तभी तो वो महान है यार, तभी तो वो नादिरा जी हैं. तभी मतलब मैं उनको नहीं जानता हूँ पर्सनली, तो नहीं जानता, लेकिन आई उनकी राइटिंग को जानता हूँ बिकॉज हमने उनके नाटक किए हुए हैं, बिट्स किया हुआ है. परमिशन नहीं, छत पे करते थे अपने. अच्छा. बट वी वुड डू लाइक प्रॉपर परफॉर्मेंसेस, बट छत पे, पैसे नहीं, टिकट नहीं. हमने जैसे दयाशंकर की डायरी है, ऑब्वियसली हर कोई करना चाहता है, तो थैंक यू नादिरा जी. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट्स. मेरे पिताजी फरुखाबाद से ही थे, मेरा पूरा कुनबा फरुखाबाद से ही है, तो मैं तो और ज़्यादा मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स एंडियरिंग होती है. एंड देन आई रेड दयाशंकर, आई थॉट इतना deep rooted text in an individual's personality, and for a female writer to write this male perspective and bring the female perspective somehow and mix it and make it a story about a madman or not, depending on how you interpret it, and then finishing it in such a sensitive manner. It touches, जो silence होती है ना, मैं बोलते बोलते एकदम ये वो नाटक कर देता है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेज आई हैव डन, जिसमें मुझे करके ऐसा लगा ना कि यार एक टाइम पे एक्टर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने सेल्फ को, बट मेरे को उसको करके लगा था भाई मजा आ गया, खुल के मतलब मैं किया था वो. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आप देखोगे वो वाली तो इतनी अच्छी नहीं होगी शायद, बोलेगा क्या, वो अलग बात है, लेकिन एक ट्राई जो करना है. लंगूर गुलाटी कर रहा है, बट मेरे को बहुत मज़ा आया था उस समय. या सो यस, तो नादिरा जी, मैं तो यार आई एम नॉट, सो इन दैट वाज अ वेरी नाइस ब्रेक टू हैव समवन हु इज रेडी टू टेक यू थ्रू द बेसिक्स. अगर बहुत कम लोगों में 2-3 पेशेंस की बात है. तो जो वो चीज़ आई हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दैट प्रोसेस. सो आई थिंक यू धीरे आई एम. तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आप वो करते हो, एंड देन उसके बाद फिर मुझे टीवी पे कुछ राइटिंग का काम मिलने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड मूविंग ऑन, एंड देन आई डिड फिल्म्स, एंड और फिल्म्स किया.
अब उसके बाद मुझे थिएटर करने का मन नहीं था somehow. I don't know why I stopped doing theater and then I started doing films. After doing films, I was thinking कि मैं ना फिल्म करते करते एक्टर बन मतलब एज अ एक्टर आई विल ट्रांसफॉर्म इनटू दैट. पर सच बताऊं वक्त कैसे गुजर गया ना मुझे पता ही नहीं चला. 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 4 साल में असिस्ट करता रह गया. 2-3 साल में टीवी में राइटिंग करता रह गया. उसके 4 साल पहले मैं थिएटर. तो अराउंड 13 ईयर्स हो गया बॉम्बे में उस हिसाब से. अब 14 हो गया. तो 12 साल जब गुजर गए तो मैंने कहा ये क्या हो गया. 10 साल गुजर गए तो मैंने कहा ये क्या हो गया. एंड देन आई क्विट एवरीथिंग. आई एम लाइक नो आई एम नॉट असिस्टिंग. एंड आई हैड वर्कड विद नसीर सर इन अ फिल्म बाय द टाइम. हंगरी में ना. हंगरी में. तो मेरे मन में था लेकिन मैं सोचा कि मैं सर के पास जाके क्या बोलूँ कि मुझे आपके साथ काम. एवरीबडी इज डूइंग दैट. सर डायलॉग आया था सर. हाँ. तो मैंने कहा कि नहीं. when I feel I really want to do theatre again because I didn't want to do theatre. So I quit my job, everything. I started some small theatre group with Mudit. और वो शुरू किया हमने. 1.5 साल काम किया. फिर तुम्हारे थ्रू में लौरा के साथ 2-4-6-7 प्ले किया. एंड 1-1.5 साल 2 साल काम करने के बाद या थैंक यू वेरी मच लौरा. तो 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि समहाउ आई एम इन अ लूप. वो लूप से नहीं निकल पा रहा. एंड देन आई रियलाइज कि नाउ इज़ द टाइम. तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया. चांस बन गया. मतलब इट्स जस्ट it's everything is just chance. What happens where you have to reach, you have reached. तो फिर then I worked with sir for like Nasir sir for 1.5-2 years. And again that is also education. Like is watching father for 25 days straight in NCPA, and I would watch every day. And every day would be so spontaneous. बहुत सही है मतलब कमाल है. and कमाल. वो आपके दिमाग में तो चढ़ता है ना. आप जब रोज देखते हो कि that is something that you need to figure out. फिर उसका दूसरा प्ले किया. फिर तीसरा प्ले किया. फिर वो प्रोसेस. फिर वो स्टोरी टेलिंग में जो प्रोसेस था. I should not feel bad that I didn't want go to a acting school or institute. I worked with all these people. और इन लोगों के साथ जो एजुकेशन है, नसीर सर के साथ जो एजुकेशन है, नादिरा जी के साथ जो एजुकेशन है, इवन आई एम मिसिंग दिव्या पालट. I did improvisation workshop. I was so inhibited ना उसके पहले. तो मैंने थिएटर में मैं डायलॉग याद करके बोल लेता था लेकिन फट नहीं बोल पाता था. देखिए हमारे लड़के को आप देख के बता ही नहीं सकते कि के लड़के में इनहिबिशन था भी कभी. तो मैं दिव्या के साथ मैंने 2-2.5 साल काम किया एज अ ये क्या इम्प्रोवाइजेशन में और इम्प्रोव में. एंड आई वॉज अ पर्सन पहले बहुत सोच के चीज़ें करता था. एंड देन आई बिकेम फ्री. वो दोनों मिक्स हुआ ना एक अलग लेवल पे पहुंचा. सो एवरीथिंग इज लर्निंग. आई थिंक आई टेक माई क्वेश्चन बैक. एक्चुअली देर आर सो मेनी वेज टू रीच वेयर यू वांट टू रीच. whatever is your way is the best way. यार मैं ना उसमें ऐड भी ये भी करना चाहूँगा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है हम दोनों ने एक ही बात कही है. पिछले 10 मिनट में मैंने बात की फिर तुमने बात की. दोनों सेम ही बात है. ठीक है. कन्वर्सेशन तो कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और क्या है ना कि इसमें क्या है कि I think one should benefit from take advantage of the benefits of gratitude. Be very very thankful to each and everybody who's taken time out and तो ये तो ग्रेटिट्यूड की बात है. तो एक नाम और मैं लेना चाहूँगा. बिल्कुल लो है ऐसे तो मैंने मतलब आई विल ऑब्वियसली मिस अ लॉट ऑफ नेम्स. सो मैंने पहला प्ले किया था एक इत्तू सा रोल था. पवन उत्तम हमारे डायरेक्टर थे. क्या उन्होंने मुझे मतलब क्रेजी. थैंक यू वेरी मच पवन भाई. फिर उसके बाद एक प्रॉपर रोल मुझे पहली बार मिला. तो माय फर्स्ट डायरेक्टर देन बिकम्स जूही बब्बर. उसमें जो सीखने को मिला है लाइफ लॉन्ग वो हमेशा. और मैं पहले शो में लाइन भूल गया. वो इतना डांट खाता था मैं रिहर्सल में. और मैं कहता था मैं इतना इनहिबिटेड था ना कि अगर मुझे चेंज बताती थी तो मैं कहता था कल करके आऊँगा.
फिर मैं घर जाके मैं अभी रहने दो, मैं कल करके आऊँगा। और वो भी ठीक है कि हाँ ठीक है, चुप कल कर ले भाई। भाई मैं तो बहुत खुश था, मेरे को पहला रोल मिला था, राखी मानव ने दिया था मेरे तुमको को। तो लीड ही कर रहे थे। अब मेरे को पता नहीं कि लीड मिल गया, मैंने इतनी भर भर के एक्टिंग की है ना उसमें, मैं सारी एक्टिंग एक ही प्ले में कर दूंगा। मजा आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि man. रिहर्सल में तो जो भी डांट खाता था मैं, लेकिन शो में जब मैं लाइंस भूल गया ना, तो मुझे लगा कि अब तो ख़त्म है, अभी छोड़ो थिएटर वेटर, अभी जाते हैं गाँव वापस। एंड देन शी केम टू मी एंड शी सेड इट्स ओके, देयर विल ऑलवेज बी अ सेकंड शो। एंड आई वाज लाइक, आई थॉट इट वाज अ बिग डील एंड इट जस्ट, एंड आई बिकेम मजा आ रहा है। And I became fine. I was like, there is always a second show. मैंने अपनी तरफ से तुमने अपनी कोशिश की क्या? तुमने जान के क्या किया? मैंने कहा नहीं, जान के तो नहीं किया, हो गया, भूल गया लाइन। तुमने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। And that is what I tell everybody else कि it is an experience. Experience करते हैं ना। अगर हम अपनी मेहनत कम करें, काम चोरी करें तो अलग बात है। यार हमारे सर तो हमारी बेइज्जती कर देते थे। हमें लगता था महीना महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जैसे आषाढ़ का एक दिन हमने 6 महीना लिया उसकी रीडिंग करके तैयार करने में। एंड वी वर डूइंग अदर प्लेज इन द मीनवाइल। तो हम तो बड़ी मेहनत करके, बड़ा मेथड करके घुस जाते थे उसमें। और सर खत्म हो गया, सर शो कैसा लगा, कह रहे व्हाट द फक ब्रो। कहते कि हाँ ठीक है, हो गया खत्म, नेक्स्ट शो मूव ऑन। तो वो भी लर्निंग होती है। नहीं, हर चीज़ एक लर्निंग है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये जो प्रोसेस शुरू किया है और लर्निंग का और हर चीज़ का, और लर्निंग तो हमेशा ही चलती रहती है। मतलब हाँ, यही मेन बात है जो तुमने जब नसीर सर के बारे में जो बात कही थी कि मैं उनके साथ काम किया 1.5-2 साल ये सब किया, तो ये बात बहुत सो इट रिमाइंडेड मी कि हमारा, ये मैं बोलना चाह रहा था कि हमारा क्राफ्ट एक ऐसा एक प्रोफेशन बोल लो या फिर हाउएवर यू वांट टू कमिट टू इट, ये एक ऐसी जगह है जहां पे यू हैव टू कीप स्टडीइंग, ऑब्वियसली हैव टू कीप लर्निंग। हमारी स्टडीइंग यार, स्क्रिप्ट्स होती हैं, कहानियां होती हैं, एक्टर कभी खाली नहीं बैठ सकता। इंसान को काम करना होता है फॉर डिफरेंट रीजंस। एक्टर्स अगर खाली बैठते हैं तो उनके पास खाली बैठने के लिए मतलब कोई वजह नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं। You can always do monologues, you can always do scenes, you can always go back to scripts and read, study, consult people. You will always have that. So जब तुमने बोला ना कि यार मैं इधर गया, फिर उधर गया, फिर जूही, फिर नादरा जी, फिर नसीर सर, फिर all of that, तो जरा ये बात मेन है, because even if you've studied at NSD, even if you've studied at FTII, you will always, I mean, with all due respect, you will always be a better actor if you keep continuing your practice. Yes. Continue that practice, चाहे आप कहीं से भी पढ़ के आए हो. I've had the privilege to work with with the best directors. So I would say some of the best directors in the country. जब मैं पहला प्ले किया था उसके बाद रागी मानव से लेके, आमिर सर से लेके, यश से लेकर, इवन आइवाना व्हेन शी डायरेक्टेड, एंड बाकी जो मेरे टीचर्स रहे हैं वहाँ पे, माइकल इन फ्रांस एंड ऑल ऑफ दैट। देन मैं LA में भी सीखा, वहाँ के एक्टर्स के साथ काम किया। मेन मुद्दा यही है कि करते रहो, तो बस वही है अपना, मतलब यू कैन ऑलवेज बी अ बेटर एक्टर, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एक छोटी सी पॉइंट है, एंड देन वी कैन क्लोज द कन्वर्सेशन। व्हेन आई हैड स्टार्टेड एक्टिंग, उसके पहले ना मैं किसी एक चीज़ पे टिक नहीं पाता था। आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे ना ईज चाहिए, कि समथिंग दैट आई लव डूइंग एंड ब्ला ब्ला, और मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि एक दिन अचानक मैं उठूँगा सुबह और मुझे एक्टिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। वो फियर होता था, और कि तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं पूरी फोकस उस पर डाल दी है। मैं जैसा भी करता हूँ, मतलब वो लेवल की अलग ही बात है, वो छोड़ दो। मतलब मेरा तो सारा फोकस उस पर ही है ना, कि रियलिटी कॉन्टेक्स्ट में मैं किस लेवल पे हूँ, क्या हूँ, वो मैं नहीं पढ़ना चाहता उसमें। लेकिन हाँ, तो वो फेयर मुझे हमेशा रहता था। अभी ना कुछ दिन पहले मैंने मनोज वाजपेयी जी का वो देखा, एक सॉन्ग, भगवान और खुदा, और फिर एक पोइट्री सुना। मैंने कहा कि, और फिर वो तांडव आया अभी, तो मैंने एक नोट सोचा, लिखा मैंने उनके लिए कि
आपका काम जब मैं देखता हूँ, और जो मैंने 2 साल नसीर सर के साथ काम किया, आप लोगों का काम देखता हूँ, बहुत सारे और भी बड़े अच्छे एक्टर्स होंगे, मुझे एक पल को नहीं लगता किसी फिल्म में भी देख के या किसी नाटक में देख के कि ये मजबूरी में कर रहे हैं, कि अभी कर रहे हैं इतने साल से तो कर लेते हैं। वो स्वाद लेते आज भी उतना ही प्यार है उस काम से, और वो दिखता है। तो मैंने कहा कि है ना पॉसिबल यहाँ पे, इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इवन आई कुड बी समवन के जो कि 40-50 साल का हो गया तो भी मैं उतना मज़े ले रहा हूँ उस चीज़ में, मतलब इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब मनोज वाजपेयी साहब सर जब अलीगढ़ पे जब काम कर रहे थे तो उंगलियों पे ना उनके ऐसा लग रहा था कि उनकी उंगलियों में ना उनके वो दिल के तारे हैं। यार एक बार बुलाओ सर को यार। कि उनकी उंगलियों में ना उनके दिल के तारे हैं जो अंदर कश्मकश से ना उनका दम घुटा जा रहा है, लेकिन वो किसी न किसी तरह एक गुंजले हुए मांझे को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में गाने में लगे हुए हैं कि यार कोफ्त तो है, मजबूरी तो है, सेहरन तो है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, किसी तरह जी रहा हूँ। मतलब दिल फट जाता है उसमें। एनीवे इंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। So let's try and get Manoj sir and Nasir sir for our Sunday talks किसी दिन, if they are kind enough। हाँ मतलब मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ। भाई अपने बात पहुँचता है मैं। But there's a lot of learning। I would obviously यार मतलब मतलब I can't even say this without getting overwhelmed how much their performances, people like Mr. Bajpayee, Mr. Shah, Mr. Irfan Khan, rest in peace, all these guys, Mr. Amitabh Bachchan, especially the Amitabh Bachchan of Abhiman, these people have छोटा मुंह बड़ी बात, but influenced my काम नहीं बोलूँगा because काम अभी करना है पूरी जिंदगी, and I'm not being too ideological, but they've just influenced my thought। नसीर साहब की फर्स्ट फिल्म्स, one of the first films that I saw जो मेरे को याद रही was मिर्च मसाला। अच्छा, I don't know if I've seen, मैं देखा ही होगा मैंने। हाँ मिर्च मसाला। भाई ठाकुर तो भाई गदर ही मचा दी हो ठाकुर, मतलब इतना तो ये एक तो हमारे फील्ड, हमारा जो काम है, प्रोफेशन है, एक तो फ़ायदा ये भी है कि हम लैपटॉप पे कोई फिल्म देख के इंस्पायर हो सकते हैं और खुश हो जाते हैं कि यार क्या बात है यार, लेट्स डू समथिंग, ये सीन एक बार पढ़ ही लेते हैं। ये सीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अभी जैसे टोल्स्टॉय वर्सेस डिकिंस वाला जो एपिसोड है, मैं तो कहूँगा कि हर एक्टर को देखना चाहिए। वो इतना अमेजिंग है ना, वो रीडिंग कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परफॉर्म कर रहे हैं 1 महीने से। ओह डैम, ये चलता ही रहेगा। मतलब आई थिंक लेट्स वी नीड टू रैप दिस अप। सो या, फुल बी काइंड एंड ट्राई टू बी हम्बल। यस, and be loving man, just chill bro, but don't be over humble, मतलब एक्स्ट्रा। नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं सर, मैं तो एकदम आता ही नहीं। मुझे आपने मेरे को जमीन पे गिरा दिया, मैं गटर में गिर गया जाके, मैं नीचे। Okay guys, bye, this is the end of Big Small Talk। We can keep talking for 2-3 hours, we do that every day, we just recorded this one। Love you guys, bye।